student. Okay, now let's see class system. The class system is universal in nature. It is found in all civilized society across the globe. The class system refers to the classification of individual based on the economic position in the society. That means it is not only India that divide the people according to the class, but it is worldwide, universal. That means anywhere in the world you go, you find the classification of the people on the based on their economic position. The people with economic standard, the people who is having higher income is put in the higher society, and the people with the lower income group will put in the lower society. It is individual economic achievement that is considered rather than the birth in the particular family. However, the individual born in the wealthy and the influential family have a better access to the opportunity and the resources. That means people are judged on the basis of the economic resources they have rather than judging the people on the particular level, individual level. And definitely here the people who are born in the rich family, okay, has automatic rich. But that means, for example, the people, the children who are born in the celebrities, film stars family, or the cricketers family, or in the business family, are getting more opportunity than the people who are born in the middle class family and the lower class family. Normally, the classes are divided on the basis of the economic classification, that is upper income class, middle income class, and the lower income class. Each of the class is further subdivided into three. For instance, upper income class is further divided into upper class, upper middle class, and upper lower class. That means you are aware of this word upper class, middle class, lower class. That means okay, whatever the economic position you enjoy, what are the economic status of your of a family, definitely on the basis of the society defines you, and you better know what is your economic status, whether you belong to the upper family or the middle family, or sorry, whether you belong to the upper class or whether you belong to the middle class, or whether you belong to the lower class. In India, majority of the people are belonging to the middle class. That means वो इतने higher level के अमीर भी नहीं है और इतने lower level के गरीब भी नहीं है. Okay, so middle class people जो है वो इंडिया में ज्यादा है. अगेन जो अपर क्लास है उसमें कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपर क्लास के, बहुत ज्यादा रिच है, तो उनको बोला गया है अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड देन अपर लोअर क्लास. ओके, नाउ वो कौन सा बेसिस है जिसके बेसिस के ऊपर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लासेस, वो कौन से फैक्टर्स इनके बेसिस पे सोसाइटी जो है इनको डिफाइन करती है. लेट्स सी द इनकम एंड वेल्थ. Income refers to all the earning of the individual, and wealth is the sum total of all the assets. That means how much you are earning, that is your income, and on the basis of the income आपके पास पैसा है, उससे आपने wealth खरीदा, that means आपने assets खरीदी, या जो assets आपको inherited मिली है, that is you got your father, you got your forefathers. For example, see जो घर में हम रहते हैं, जो jewelries हमारे पास है, या फिर और भी कोई precious shares है, bonds है, जो हमको हमारे father ने दिया है या हमारे grandfather ने दिया है, that is income and wealth. On the basis of that, the society is dividing into upper middle class or middle class or lower. Then the level of education. Again, level of education also defined as, that means people who are highly educated, people who are just graduate, or people who illiterate हैं. Then there is a type of occupation. Okay, there is a white collar job also. That is, for example, doctor, teachers, lawyers, architects. Okay, they enjoy the types of this. That means they enjoy the higher level job. Whereas occupation जिनको lower then material position, that is luxury cars and the lifestyle. That means कि आपके पास material चीजें क्या है, material चीजें, that means वो चीजें जो नहीं भी हो तो आप लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार, आपके पास मोबाइल फोन से, यू रिक्वायर्ड स्मार्टफोन जस्ट अभी बिकॉज आपका लेक्चर है, अदरवाइज स्मार्टफोन नहीं भी होता तो चलता था आपके पास. बट दे आर पीपल हु आर परचेजिंग मोबाइल फोन कॉस्टिंग रुपीज lakhs, 2 lakhs. Okay, people having the luxuries item in home like air conditions or other things. Okay, इसके बेसिस के ऊपर भी आपका जो स्टेटस है वो डिफाइन होता है. ओके, नेक्स्ट स्टेटस लोकेलिटी ऑफ रेसिडेंस. दैट मीन्स कि कहाँ पर रहते हैं पीपल. हाई इनकम ग्रुप सोसाइटी, मिडिल इनकम ग्रुप सोसाइटी, लोअर इनकम ग्रुप सोसाइटी. इवन द स्टेटस से भी डिफाइन होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कहाँ पे रहता है, कौन सी लोकेलिटी में रहता है. सम लोकेलिटी इज कॉल्ड द हाई फाई लोकेलिटी, वेल सम लोकेलिटी इज अ मिडिल लोकेलिटी, एंड देयर इज अ स्लम्स एरियाज आल्सो, एंड देयर इज अ स्टेटस व्हिच person enjoy in the
फैमिली, सॉरी इन द सोसाइटी, और पर्सन की जो है स्टेटस क्या है सोसाइटी में, दैट मीन्स उसको कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कितने लोग उसको जानते हैं, ऑल दिस डिफाइन द क्लास. The state system is a form of stratification which exist in Europe during the Middle Age, that is 476 AD to 1450 AD. In a state system, a person's social position was determined by the ownership, occupation, and hereditary status. That means here in the state system, the person की social status क्या है सोसाइटी में, वो तीन चीज के ऊपर डिटरमाइन होगी. ओनरशिप, दैट मीन्स वो किस चीज का ओनर है, दैट मीन्स वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके पास. उसके बाद ऑक्यूपेशन, वो कौन सी ऑक्यूपेशन में है. एंड लास्ट इज द हेरिडिटी स्टेटस. हेरिडिटी स्टेटस का मतलब होता है, हेरिडिटी मीन्स वॉट एवर वी गॉट फ्रॉम अ पेरेंट, फ्रॉम अ ग्रैंड पेरेंट, वो हेरिडिटी स्टेटस होती है. एवरी स्टार्टम इन दिस सिस्टम हैड इट्स ओन एस्टैब्लिश्ड राइट्स एंड ड्यूटीज. This system had the hierarchy based on the heredity and didn't allow much movement from the one stratum to the other. That means this is ये यूरोप में ज्यादा होता था. ओके, डेट दिया हुआ है. एंड दिस इज मोर ऑफ हेरिडिटी, या हेरार्की और हेरिडिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस है. लेट्स सी द फोर ग्रुप. द क्लेरिगी, the aristocrats or the feudal lords, trader, merchants, craftsmen, and the last is serfs, that is lenders, peasants and slaves. ओके, 4 कैटेगरी में सबसे पहले आप देखो इसमें जो है वो क्लेरिगी, दैट इज परफॉर्म अ रिलीजियस ड्यूटी, दे एंजॉय द कंसिडरेबल प्रेस्टीज एंड ओन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, दे कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सी यू सी एनी रिलीजन, वो लोग जो रिलीजियस ड्यूटी करते हैं, सी एवरी रिलीजन में हमारे रिलीजन गुरु होते हैं, हम सब हर रिलीजन वाले उनको रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो हायर लेवल के हैं ये लोग रिलीजियस ड्यूटी करते हैं और जो है सोसाइटी में इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है. और जो जितना भी लैंड है, दैट मींस जितनी भी जमीन है, वो ये सबसे ज्यादा ओन करते हैं. एंड डेफिनेटली इनके बाद इनके मतलब एक फादर है, उससे उसके बेटे को मिल रहा है, देन उसके तो ये हेरिडिटी है. मतलब अगर एक पर्सन के पास लैंड है तो लैंड एक ऐसी चीज है जिसके कोई डिमिनिशिंग वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. ओके, इफ यू सी द अदर एसेट्स, अगर आप जो भी एसेट्स देखोगे, व्हीकल्स देखो तो मशीनरीज देखो, तो उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू है, डेप्रिसिएशन है. बट लैंड का हमेशा एप्रिशिएट वैल्यू होता है. तो डेफिनेटली जिसके पास जितना अमाउंट ऑफ लैंड होगा वो उतने, मतलब उसके फादर के पास था, फादर ने अपने सन को दिया, देन सन ने अपने सन को दिया, तो इससे क्या होगा कि उनकी लैंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. नेक्स्ट इज द aristocrats. The aristocrats comprise of small group of royalty or the feudal lords which enjoy the hereditary status and the prestige. The wealth was concentrated in their hand. The aristocrat owned the land as well as the landless peasant who lived and worked on the land. The aristocrat were the warriors and protected the feudal. That means कि ये जो है second वाला जो aristocrat है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, और ये हेरिडिटी से, दैट मीन्स कि जो रॉयल फैमिलीज में बॉर्न होते हैं वो हमेशा रॉयल फैमिलीज का ही कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी भी बहुत कंट्रीज है, हमारी कंट्रीज में भी कुछ बोलते हैं ना कि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स वो जो रॉयल्टी उनको मिल रही है वो उनको हेरिडिटी से मिल रही है, और उनके पास जो है बहुत सारा वेल्थ है जो उनको उनके फोर फादर्स से मिला हुआ है. Okay, next traders and the merchants and the craftsmen. See, as the name suggests, ये trader है, craftsmen से trade करते हैं. The merchants undertook the business related activities. Okay, that means कि ये merchants है. अभी भी देखो mercantile agents, underwriters, ये आपने सारी चीजें SP में सुनी होगी. They are doing the trades. The craftsmen undertook particular craft which are mostly passed from one generation to another generation. In the real sense, the merchants and the craftsmen were outside the state system. And last is the serfs and the slaves. As the name suggests, slaves का मतलब आपको मालूम है क्या है. The serfs were legally tied to the land. Their condition was similar to that of slaves. However, unlike slaves, the serfs were not bought or sold. That means see, at a time एक टाइम भी था जहाँ पे जिस तरह से हम लोग अभी चीजें खरीदते हैं ऐसे लोग भी बिकते थे. ओके, लोगों को अपने मूवीज में देखा होगा ना, स्पेशली जो अरेबियन राइट्स के सीरियल्स होते हैं, अलादीन या ऐसे सीरियल्स में आपने देखा है ना, लोग बिकते थे पहले. देखा है ना आपने, अशरफ याज देते थे और लोगों. हाँ मैम देखा था. ओके, सो और उनको स्लेव्स बना दिया जाता था. ओके, उनको लेबर पे बॉन्डेड लेबर होते थे, उनको काम कराते थे, एंड लोग जो है उनको एक्सप्लॉइट करते थे. ओके, तो ऑल दिस आर द 3 ways of the state. That means कि first we have seen
caste system, second we have seen the class system, and third is the state system. On this basis the state has been. Okay, now let's see, यहाँ पे Max Weber has identified the three orders within a society, that is economic, social and political. Corresponding to three orders, Weber identified the three dimension. One is class, second is a status, and third is a power. Okay, now I explain you about the class. कि क्लास लोगों को this person is from the upper class, this person is from the middle class, this person is from the lower class. कैसे आइडेंटिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड वेल्थ. ओके, दैट मींस वो पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है. सी देयर इन इंडिया देयर इज पर्सन जिसकी मंथली सैलरी 5 लाख रुपया भी है, जिनकी मंथली सैलरी जो है वो 5,000 रुपया भी है, और इंडिया में ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 50 रुपीज भी कमाते हैं. ओके, सो इनकम इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देयर इज इनइक्वालिटी इन इनकम इन इंडिया. Not only in India, if you go to the world also, many countries in the world has inequality in income. That means the people, all the people not getting the same income. Definitely जो income है is depend upon your occupation, कि आप कौन सा occupation करते हैं. और जैसे आपके पास income जमा होती है with the help of the saving, investment, आप wealth purchase करते हो, आप घर purchase कर रहे हो, या purchasing car, कि आपके पास कितनी wealth है. And then material position. Material position का मतलब होता है वो चीज जिसके बिना भी आप सरवाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विदाउट एयर कंडीशन और विदाउट टेलीविजन और विदाउट कार्स भी आप सरवाइव कर सकते हो, बट आप लोग ये चीजें परचेज करते हो. दैट इज नॉर्मल हिंदी में बोला जाएगा तो गाड़ी, बंगला, दैट इज ऑल दिस इज कॉल्ड मटेरियल पोजीशन. तो इसके बेसिस के ऊपर कि ये पर्सन है, इसके पास कार है, बंगले है, इसके 2 फ्लैट्स है, इसका 3 BHK फ्लैट है, ऑल दैट इज कॉल्ड द मटेरियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ द विच द सोसाइटी हैज बीन डिफाइंड कि इसका ये क्लास है. सेकेंड इज द स्टेटस. इट्स स्टेटस इज आइडेंटिफाइड बाय द स्पेसिफिक सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्डर which is based on the how the member of the society evaluate the certain occupations. See, for example, देखो वहाँ पे दिया, you can see the cursor. Cursor दिख रहा है आप लोगों को स्टूडेंट? मेरा cursor दिख रहा है. For example, दिखा? The president of the country enjoy the higher status, but if she is not necessarily the richest and the most powerful. Now the status में क्या होता है कि person, जैसे for example president of a country, हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो उसकी स्टेटस बहुत हाई है ना, लेकिन जो है वो रिच नहीं है. हो सकता है कि वो रिच नहीं है. उसके बाद एक एग्जांपल दिया है, देखो, अंडरवर्ल्ड डॉन मे बी वेरी रिच बट डू नॉट एंजॉय द सोशल स्टेटस. दैट मींस कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उसकी सोशल स्टेटस नहीं है. क्यों स्टेटस नहीं है? क्योंकि वो डॉन है. वो सोसाइटी में नहीं आ सकता. सी, हम लोग प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बना सकते हैं, सेलिब्रिटी को चीफ गेस्ट बना सकते हैं, लेकिन किसी डॉन को चीफ गेस्ट बुला सकते हैं क्या? बुला सकते हैं क्या चीफ गेस्ट? No, ma'am. हाँ, इसका मतलब कि it is not about the money you have. Okay, whatever money you have, that is a secondary criteria कि आप कौन सा स्टेटस जो है सोसाइटी में कर रहे हो. आपके पास पैसा है लेकिन आपकी सोशल स्टेटस नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप मार्केट सोसाइटी में आपकी स्टेटस है. ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड डॉन का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ में आए. लास्ट इज अ पावर. कुछ लोग पावर भी प्रोनाउंस करते हैं, बट इट इज नॉट पावर, इट इज पार. ओके, ओ इज साइलेंट ओवर हियर. इसका इज एबिलिटी टू मेक द डिसीजन और इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ द अदर्स. ओके, आप लोगों को पावर का मतलब मालूम होगा कि किसके पास कितना पावर है. जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे कंट्री में सेलिब्रिटीज है, जो पॉलिटिक्स है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है. ओके, इन डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी, जैसे हमारी कंट्री की जो रूलिंग पार्टी है उसके पास पावर है, वो चाहे तो कोई भी डिसीजंस ले सकती है. It is true that those who have economic power also has the political power. जैसे for example बोलते हैं ना कि that person उसके पास तो बहुत पैसा है तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है. That means कि rich people, business, वो influence दूसरों को influence कर सकते हैं. Political parties भी उनको help करती है because उनके पास पैसा है. तो all this plays a very important role. That means कि dimension जो है वो 3 कैटेगरी में डिफाइन हुआ है, क्लास, स्टेटस एंड पावर. के पर्सन कौन सी क्लास से डिफाइन करता है, कौन से स्टेटस से आता है, एंड पावर क्या है. ओके, नाउ लेट्स सी the abolition of the untouchability in 1955 is in landmark legislation in the history of India. I hope आप लोगों को पता है कि ये क्या है. I don't need to explain. हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड स्टूडेंट. आप लोगों को पता है ना ये क्या है? Okay, I'm just okay. Now let's see what are the major changes that have done in India.
What are the major changes? Okay, first is a free education. Education is made free for the backward caste in India, and therefore a good number of the backward caste people are able to get a good education, which enable them to get a better job, especially in the public sectors as teachers, clerk, officers, etc. As you know, कि there is a class. आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक certain class है जिनके लिए reservation होता है. Okay. Hello. I'm audible, student? Yes. Okay. So जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो आपको उसमें लिखना पड़ता है कि आपका कास्ट कौन सा है. I hope this one is clear कि certain caste certain jobs are reserved for the certain caste. उसके ऊपर बहुत सारे arguments भी होते हैं, but हमको वो controversial topic में नहीं जाना है. हमको ये देखना है कि इनको free education मिला है, because ये लोग जो कैटेगरी है ये लोगों ने बहुत सफर किया है. तो अभी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर मतलब दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे टीचिंग जॉब है या क्लरिकल जॉब है या ऑफिस जॉब है, ये बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व होता है ताकि इनको जो है फ्री एजुकेशन भी मिले और बाद में इनको काम भी मिले. रिजर्वेशन यू कैन सी एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी. अब जो भी कोई भी फॉर्म भरते हो तो ये सब कैटेगरीज होती है और जो कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओपन कैटेगरी, आपको ओपन कैटेगरी लिखना पड़ता है. यस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये पॉइंट? Yes, ma'am. Okay. SC that is scheduled caste, ST that is scheduled tribe, OBC. ओके, दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में ये जो है अभी भी है कि कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं आपको ये फील करना पड़ता है. एंड अगर आप कोई भी कास्ट में बिलोंग नहीं करते तो आप ओपन कैटेगरी में आप लिख सकते हो कि ओपन कैटेगरी है. द गवर्नमेंट एम्स टू सॉल्व द सोशल इनइक्वालिटी on account of the caste system through the reservation in the following forms. For example, preferential treatment. When there is a competition for the state's job, other thing being equal, a backward caste person is preferred over the other. In this case, there is no dilution of the qualification or the skill. Okay, बहुत सारे competitive job होते हैं, बहुत सारे competitive exam होते हैं, जहाँ पे category wise होता है कि if you belong to the open category, see there is a difference in fees also. ओके, फीस में भी डिफरेंस होता है, और क्या बोलते हैं, फीस में डिफरेंस है, एंड देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रेफरेंस. दैट मींस दिस परसेंटेज, अगर ये कैटेगरी है तो इतना परसेंटेज, ये कैटेगरी तो इतना परसेंटेज. यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस. ओके, तो प्रेफरेंशियल गिवन टू ऑल दिस. नेक्स्ट, सेकेंड इज, आई होप आपको दिख रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. थोड़ा सा ब्लर है बट मैं लीड कर देती हूँ. मेंबर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट इन द इज प्रीफर्ड इवन द अदर थिंग बीइंग इक्वल, लाइक नॉट इक्वल. बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स आर प्रीफर्ड ओवर द मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक. ओके, दैट मींस के इफ द पर्सन इज बिलोंग टू द बैकवर्ड कास्ट, जो भी यहाँ पे कास्ट मेंटेन है, देखो SC, ST, OBC, तो अगर उनका परसेंटेज अगर लो भी रहा कंपेयर टू द ओपन कैटेगरी तो भी उनको प्रेफरेंस मिलता है. Affirmative action or activities are undertaken to help the member of the backward class to get the special loans, scholarship, training and the other facilities, not only on the job. अगर loans भी चाहिए, स्कॉलरशिप भी चाहिए या ट्रेनिंग भी चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं ताकि ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं इनको जो है हेल्प मिले. देन देयर इज अ कास्ट एंड द पॉलिटिक्स. एन important trend which is emerging to caste factor is the politics. Although the caste is losing the significance in the social system, but it plays a dominant role in the Indian society, especially for the vote bank. Now, what is the meaning of vote bank? Anyone can tell me what is vote bank? Vote bank क्या होता है? What is vote bank, student? मैम, जहाँ पे गोल्ड लोन मिलता है. नहीं, वोटिंग जो होती है, गोल्ड नहीं बोल रही हूँ मैं, वोट बोल रही हूँ. वोटिंग होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो है. मैम, हाँ बोलो. वोट बैंक मींस पूरा एक कास्ट किसी एक तरफ जाके वोट दे. वेरी गुड. दैट मींस दिस पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये भी ऐसे ही करती है. दे डू द प्रॉमिसेस दैट विल डू दिस, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग जॉब्स इंक्रीज करेंगे. सी इंडिया इज फेसिंग द क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है. तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सबसे पहले यही बोलती है कि हम लोग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे. ओके, अगर आप लोग ये कैटेगरी के हैं तो हम आपको जॉब देंगे, ताकि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल और पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर कास्ट को जो है वो एक तरफ लेके आ जाए. नाउ सी, जो हमारे कास्ट के जो
लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है कास्ट के ऊपर. इफ समवन टेल्स यू ओके कि आपको ये करना है, तो वो पूरे जो पर्टिकुलर कास्ट है वो उनको फॉलो करता है. तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि जो पर्टिकुलर कोई भी कास्ट के जो भी स्टेटस, जैसे मैंने बोला पर्सन जो है वो पर्टिकुलर कास्ट को चलाता है, तो उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो पर्सन जो है अपनी कास्ट को बोलता है कि पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करना है, एंड देन पूरा वोट बैंक जो है वो पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को चला जाता है. सो इंडिया में ये सारी चीजें होती है. स्टिल इट इज गोइंग ऑन. ओके, लेट्स